bodies. Giridhar International Business School GIBS is affiliated to Guru Gobind Singh Trust Limited, Delhi, and is approved by All Indian Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for Technical Programs, and Bar Council of India for Law Programs. The institute is conducting programs like MBA, MBA International Business, BBA General, both first and second shift, BA LLB, and BBA LLB. GIBS has been graded by National Assessment and Examination Council in second cycle. GIBS has been rated A+ by State Fee Regulatory Committee or Fee Committee of Government of NCT of Delhi. It has been rated highest grading A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and GDSIP University since 2013 till date. It has been rated A by Academic Audit Cell of GDSIP University since 2011 till date. GIBS has been achieved 4-star ranking in IIC MOE ranking 2021. Also, GIBS has been rated as number 2 pan-India by Business School Survey in 2021, 2019 and 2008. At GIBS, trust is an overall personality development of students so that they can face the challenges in their competitive professional life and with value-based approach. Apart from providing quality education, emphasis is on to develop leadership qualities, risk-taking abilities, and decision-making skills right from the beginning of their professional education. Going by this agenda, the Institute conducts personality development workshops and lectures on a regular basis. The series on self and stress management is a sequel to the same objective. Students are overburdened with a variety of tasks which may result in emotional outbursts, so they must learn to control their emotions and keep calm. India is brimming with the youth, and a large proportion of them will soon enter the labor, resulting in a demographic dividend. This generation is digitally aware and up to date, but it also transfers its attention from one topic to the next rapidly. Because motivated and dedicated personnel are required in the workplace, the future generation must learn to be self-driven and enthusiastic. In order to fulfill our objective, inculcating such expertise in our students, we have an eminent speaker with us, B.K. Madhu. At 49 years of age, B.K. Madhu Ji is a rehabilitation teacher at Brahma Kumari International Spiritual University. She is currently the Director and Media Coordinator of Brahma Kumari Center, Sector 46, Faridabad. She has worked in the head office at Mount Abu for 27 years. She has BA degree in mathematics from GU. She is a motivational speaker and has delivered successful sessions to encourage the idea of stress-free life, namely the positive thinking, personality development, self-empowerment, mind power, women empowerment, de-education awareness, secret of success, happiness index, and moral values. Ma'am, it's our honor to have you. May I now request our Good afternoon. Respected madam, respected sir, हमारे सभी respected teachers और हमारे प्यारे dear student भाई बहनों, तो आज का जो सेशन है वो स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट के ऊपर है, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड सेल्फ मैनेजमेंट। थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेस क्यों होता है? ऐसा पहले बताएं कि किस किस को स्ट्रेस है यहाँ पर? अगर नहीं है फिर तो सेशन करनी जरूरी है। किस किस को है? थोड़ा हाथ खड़ा करके, थोड़ा इरिटेशन, स्ट्रेस को समझना है। कई बार हमें होता है तनाव और हम सोचते हैं कि है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, हम नहीं सोचते हैं। जैसे इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है या क्रोध आता है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, आता है और बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो नहीं, या फिर अंदर में उल्टे पुल्टे विचार चलते हैं, उदासी होती है, बोरियत होती है और क्या होता है, जेलस होते हैं और हेटर्ड भी होते हैं, कई बार हमें नफरत भी आ जाती है। तो ये सब इमोशनल वीकनेस है।
नेगेटिव इमोशंस है, ये नॉर्मल नहीं है। आपको लगता है ये नॉर्मल है? जैसे तनाव होना तो नॉर्मल है, और अगर कोई टेंशन में नहीं होता, किसी को चिंता नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं कि क्या बात आपको तनाव नहीं, टेंशन नहीं है किसी बात की, आपको चिंता नहीं है? अगर आप निश्चिंत भी हो जाए, समझ में आएगी अच्छी तरह से बात ना, आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। हम लोग भाषण नहीं कर रहे हैं, एक वर्कशॉप कर रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं। आप एक हमारी फैमिली की समझ लीजिए, आप फैमिली है ना। तो नॉर्मल क्या है आपकी भाषा में, कौन बताएगा? नॉर्मल क्या है? नॉर्मल टेंशन है या नॉर्मल हैप्पीनेस है? कौन कह रही टेंशन नॉर्मल है? आप खड़े करिए। 1 2 बस 3, अब देख देख के नहीं, अपने दिल से करिए। 4 5 6 हो गए। और बाकी क्या समझते हैं? बाकी क्या समझते हैं? हैप्पीनेस नॉर्मल है नॉर्मल हैप्पीनेस, है ना। अच्छा, हाथ खड़ा करो जो हैप्पीनेस नॉर्मल मानते हैं, जो खुशी को नॉर्मल मानते हैं कि खुशी ठीक है, होनी चाहिए, और यही हमारा वैल्यू है, यही गुण है, यही हमारा स्वभाव है। तनाव जो है ना, हिंदी में तो तनाव कहेंगे, टेंशन को, स्ट्रेस को। तनाव, किसने कहा कि तनाव से इस कदर हो गई है दोस्ती कि जब तनाव नहीं होता तो तनाव होता है। ये हो गई फ्रेंडशिप, हो गई। क्यों? क्योंकि हमने ये सोचा जैसे स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर कर दिया कि प्रेशर माना जो हमारा कार्य व्यवहार, जैसे स्टडी है, जॉब है, कोई और जिम्मेवारी है घर की, तो हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो अगर प्रेशर ना हो तो स्ट्रेस भी ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि प्रेशर ना हो। अभी जो हम टाइम देख रहे हैं काफी चेंज हो गया है, पहले के उसमें ना काफी चेंज हो गया है, काफी बदलाव आया समाज के अंदर ना, काफी चीजों में। पहले इतनी मुश्किल पढ़ाई नहीं होती थी, अब काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। अब कितने सारे रूल चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी कितने रूल चेंज हो रहे हैं, स्कूलों में भी कितने रूल चेंज हो रहे हैं, कोर्सेज भी बदल बदल कर आ रहे हैं, बहुत सारी जॉब भी ऐसी, उसमें भी काफी रूल चेंज हो गए हैं। तो इसलिए कहते हैं टेंशन लेना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हम इसको ये करें, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर बाय इनर पावर, इनर पावर। जैसे किसी की फ्लाइट मिस हो गई, या हमें कोई चीज टाइम से नहीं मिली, या कुछ नुकसान हो गया, या हमें स्कूल आना था और हमारे को सुबह का जो नाश्ता है मम्मी ने टाइम से नहीं बनाया, अब हम भूखे ही जाएं, तो भूखे पेट क्या सोचता है व्यक्ति, अब दोपहर को भी नहीं मिलेगा, सुबह भी नहीं मिला, ये तो इतना लेट हो गया, मम्मी लेट उठी है, क्यों लेट बनाया, अब मेरा सारा दिन ऐसे ही जाएगा। तो हम सोच सोच के हमारे मन में क्या हो जाता है, नेगेटिव थॉट आने से वो टेंशन का रूप ले लेता है। अब वो तो एक सिचुएशन थी, किसी कारण से टाइम से नाश्ता नहीं बना, फिर क्या हुआ, बस लेट आई, और फिर कई बार क्या होता है कि बस बहुत दूर ऐसे घुमा के लेकर आती है, फिर स्कूल में आने में हम लेट हो जाते हैं, फिर आगे मैडम है तो वो डांट लगाएंगे, टाइम से नहीं आएंगे, पेनल्टी भी लग सकती है। तो सारा दिन कैसा गया, वो सोच रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव सोचते सोचते वो टेंशन का रूप ले लेता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं काफी। फिर हम इसी स्थिति में भर गए। अब वो जो अंदर में डिस्टर्बेंस थी, वो मैं डिस्टर्ब हूँ, तो मेरे घर में जाके कोई भी मेरे से बात करेगा, चाहे वो अच्छे मूड में खड़ा है और मैं खराब मूड में हूँ,
तो वो मेरे से प्यार से भी अगर बात करेगा ना, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, कैसे बात करूंगी? मैं खुशी से बात नहीं करूंगी, मैं शांति से जवाब नहीं दूंगी। कैसे दूंगी? मैं चिड़चिड़ाता हूँ, बोलो मत मेरे से, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, आज सुबह से मूड ऑफ है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो रात तक ऐसे ही रहता है। अच्छा, भोजन भी खाएंगे ना, और भोजन भी कैसे खाएंगे? डिस्टर्ब मन से खाएंगे। तो हमारे मन की जो तरंगी है, जो थॉट है, वो अन्न पर भी पड़ता है, बॉडी पर भी पड़ता है, और बाहर वातावरण में भी पड़ता है, एक एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, भोजन पर भी पड़ता है, एक एक चीज के ऊपर पड़ता है। मानते हैं इस बात को? हमारा वाइब्रेशन कैसे बना? जो हम सोच रहे हैं, थॉट, जैसे नेगेटिव सोच रहे हो, वो वाइब्रेशन बन जाता है, और वाइब्रेशन फिर चारों ओर फैलता है, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है। तो घर का माहौल कैसा हो जाएगा? फिर कोई भी उस घर में एंटर करेगा तो कहेगा, आज ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आज कुछ बात हुई है क्या? सब ठीक हो? कुछ बातों का नहीं ठीक है हम, नहीं कोई तो बात हुई है, क्योंकि वो फील कर रहा है वाइब्रेशन को ना। हमारे आसपास तरंगे रहती हैं, जो हम सोचते हैं ना, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, हमारा एक ऑरा रहता है हमारे आसपास, और उस ओरे के अंदर जो व्यक्ति आएगा वो फील करेगा। ये साइंस है। आप कितना ही कहो मैं ठीक हूँ, कुछ बात नहीं है, लेकिन आप ठीक नहीं लगते हो, क्योंकि वो वाइब्रेशन के साथ है, वो एनर्जी आपसे ऐसी निकल रही है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि बात छोटे से होती है, लेकिन हम रिएक्ट कितना करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये एक माइक है ना, मैं ऐसे पकड़ के खड़ी होती हूँ, अब मैं इसको कितनी देर पकड़ सकती हूँ? आपको भी दिया जाए या मुझे भी, कितनी देर हम इसको पकड़ सकते हैं? ऐसे करके या ऐसे करके देखो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे में ना मेरे हाथ में दर्द होने लग जाएगी। अच्छा, इसको मैं 5 घंटा, 10 घंटा पकड़ सकती हूँ। अब क्या हो जाएगा? हाथ में पैरालाइज भी हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँ? मैं इसको, हाथ को बचाने के लिए, दर्द को निकालने के लिए मैं क्या करूँ? इसको रख दूँ, है ना? देखो कितना अच्छा जवाब दिया ना सबने, रख दो। कोई और पूछेगा ना, उसको भी यही कहेंगे। अब यहाँ कोई बात है, नेगेटिव बात है, छोटी बात है, बड़ी बात है, छोटी परिस्थिति है, बड़ी परिस्थिति है, छोटी समस्या, बड़ी समस्या, छोटी घटना, बड़ी घटना, ये कौन डिसाइड करता है कि ये छोटी है, ये बड़ी है? ये किसने डिसाइड किया? ये दर्द जो हुआ, ये तो चाहे इसका साइज कितना ही हो, चाहे 1 ग्राम का हो, लेकिन अगर मैं ऐसे करके खड़ी रहूंगी तो इसके साइज पे थोड़ा डिपेंड करेगा, इसके वेट पर थोड़ी डिपेंड करेगा। समझ लो ये समस्या है, ये घटना है, ये बात है, छोटी है, बड़ी है, पहाड़ जितनी है, लेकिन मैं यहाँ कितना लेती हूँ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे ऊपर करेगा। अब कोई तो बड़ी बात को भी, जैसे किसी को 100 बुखार हो, तो कहते हैं बुखार है आपको, कितना है? 100। कहते क्या हुआ? कोई बात नहीं, 100 तो नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाऊंगा।
सोच सोच के बड़ा कर लेता है, हाय मुझे बुखार हो गया, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया, तो वो अनइजी फील करता है। 3-4 दिन छुट्टी भी ले लेगा, कहेंगे मैं ना बुखार हो गया, मुझे बहुत अनइजी फील हो रहा है। और किसी को 104 बुखार भी हो ना, वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा जल्दी। तो बात तो वही है, लेकिन मैं कैसे सोचती हूँ उसके बारे में, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, वह मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब जब कोई समस्या आई, जब कोई बात आई, जब कोई प्रॉब्लम आई, तो हम क्या करते हैं? मैं डिस्टर्ब क्यों हूँ, मैं तनाव में क्यों हूँ? बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, यू 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 और यू ऊपर वाले पर उसमें वो देख रहा है। मेरी जिंदगी में बीमारियां, समस्याएं, घटनाएं, गरीबी, या कुछ मुझे कोई चांस नहीं मिलता, या मुझे मैं ऊपर नहीं जाती, वो उसके कारण। कोई शरीर भी छोड़ देता है ना, भगवान ने हमारे प्रिय संबंधी को बुला लिया, उसको अच्छा नहीं लगा, खाता पीता उसको अच्छा नहीं लगा, तो भगवान को क्या पड़ी है, वो हमें ऊपर बुला लेंगे, वो तो हमारे पिता परमात्मा है, वो कब बुलाए? उसने तो हमारे को नीचे भेजा है ना, जाकर खेल करो, खुश रहो, खुशी से अपना जीवन बिताओ। जीवन सुख दुख का खेल है, खेल समझकर खेलो। लेकिन हमने क्या किया? आपकी तरफ इशारा किया। कोई कहता है गवर्नमेंट खराब है, कोई कहता है स्कूल में सिस्टम खराब है, कोई कहता है ऑफिस में बॉस खराब है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई बच्चे कहते हैं घर में हमारे पेरेंट्स ठीक नहीं है, और पेरेंट्स क्या कहते हैं, बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, उनके संस्कार खराब हो गए, वो हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना जो टेंशन का कारण, अपने जो डिस्टर्बेंस का कारण हम किसको मान रहे हैं? आप बताइए किसको मान रहे हैं? बाहर ना, बाहर दूसरों को कर रहे हैं ना, या तो भगवान को या फिर दूसरों। फिर हम ज्योतिष को दिखाते हैं कि देखना मेरे हाथ में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो वो बता देता है तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है, अभी ये होगा, अभी वो होगा, फिर और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो क्या करें? कभी भी हम ये नहीं कहते कि मेरी डिस्टर्बेंस का कारण मैं खुद हूँ। कभी कोई कहता है क्या? आज तक इसने कहा है कि मैं खुद हूँ? किसी ने नहीं कहा होगा। देखिए ये ऐसे हम जब बाहर उंगली करते हैं ना, आपके कारण, इसके कारण, उसके कारण, तो ये 3 उंगलियां कहाँ जा रही हैं? मेरे साइड जा रही है। अगर बाहर 1% खराबी है, नुकसान है, दोष है, तो 3% कमी कहाँ पर है? मेरी तरफ। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। प्रेशर ठीक नहीं होगा, काम वैसे ही होंगे, परिस्थितियां वैसी हैं, जिम्मेवारियां वैसी हैं, करना तो है। लेकिन अगर मैं अपनी इनर पावर को बढ़ा लूं, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। वो मैं भी सोचूंगी कि ज्यादा करूं, कम करूं या बिल्कुल ही खत्म करूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि क्रिएटर मैं हूं। आई एम द क्रिएटर। मैं क्रिएट कर रही हूँ। गाड़ी लेट हो गई, फ्लाइट लेट हो गई, अब वो तो लेट हो ही गई, लेकिन अब टेंशन लेने से, डिस्टर्ब होने से क्या वो ठीक हो जाएगी? किसी ने शरीर छोड़ना है, वो छोड़ के चले गए, क्या वो वापस आ जाएंगे मेरे डिस्टर्ब होने से, मेरे रोने से, मेरे अशांत होने से, मेरे दुखी होने से? नहीं आएंगे। क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो किसी भी प्रॉब्लम को हमें शांति से ठीक करना है, ठीक जरूर करना है। ऐसे नहीं कि काम भी नहीं करना, कुछ जिम्मेवारी नहीं संभालनी, सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ अपने को सिखाना है कि मुझे हर कार्य, हर चीज कैसे करनी है? शांति से। पहले अपने को ठीक करके करना। मैं ठीक हूँ
तो मैं हर चीज ठीक कर सकती हूँ। खुद को मैनेज कर, खुद को हम क्या करते हैं, बाहर मैनेज कर लेते हैं सारा, उसको मैनेज करो, उसको करो, उसको करो। देखो हमने सारा होल मैनेज कर लिया, कर दिया, सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है? हम चेक भी करते हैं, गड़बड़ तो नहीं, कहीं लाइट, कहीं पंखा या कुछ कहीं से सीलिंग खराब हो या कुछ लीकेज हो या अलमारी का शीशा टूटा हुआ ना हो, बोर्ड ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक मैनेज। ऐसी कॉलेज को भी जिनकी जिम्मेवारी हो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन क्या मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने अपने को मैनेज किया? अपने को, खुद को। तो खुद को मैनेज करना बड़ा जरूरी है, तभी हम बाहर अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अगर बाहर मैनेजमेंट ठीक भी ना हो, ठीक एक बार हो भी जाता है, तो नीचे होते हैं, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो मैं क्या करूँगी? मैं ओके हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पीसफुल, आनंद स्रोत, लवफुल, पावरफुल, तो मैं क्या करूँगी? मान लो मेरा सब कुछ चला जाता है, एक ऐसी क्राइसिस किसी के पास आ जाती है, मान लो मैं भूकंप भी आ गया, आता भी है, अभी पीछे कईयों का उधर तुर्की में भी आया, पीछे और कई जगह पर आया, किसी का सारा नुकसान हो गया, ये क्राइसिस है, इस पर हमारा जोर नहीं, हमारा बस नहीं। लेकिन अब जो मेरा अपने ऊपर बस है कि मैं यहाँ पर रिएक्ट कैसे करती हूँ, मैं उसको कितना बड़ा समझकर रोती हूँ, दुखी होती हूँ या सुसाइड कर लेती हूँ, ये मेरे सोचने के तरीके पर डिपेंड करेगा, ये मेरे रिएक्ट करने के तरीके पर डिपेंड करेगा। तो मैं क्रिएट क्या करूँ कि कोई बात नहीं, एक क्राइसिस आई है, ये मेरे बस में नहीं था, कोई होगा मेरा कर्मों का हिसाब का, कुछ तो होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब जो बचा है, मैं अपने को ठीक रखकर, अब ईश्वर को याद करके, अच्छी थॉट रखकर, अब मैं दोबारा फिर से डेवलप करूँ। कर सकते हैं ऐसे? किसी का 1 लाख का नुकसान हो जाता है, इतना डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब, रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं दूसरों को। और किसी का 10 लाख का नुकसान हो जाता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तो ये 10 लाख भी मैंने कमाए थे, अब मैं इसको फिर से कमा लूंगा। लेकिन क्राइसिस आई है, प्रॉब्लम आई है, तो उसका क्या कर सकते हैं? वो तो आई है। तो इसलिए हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते। कई बार कोई हमारी डिस्टर्बेंस का कारण कोई व्यक्ति भी होता है, जैसे आप सब भी पढ़ते हैं ना, आप एक दूसरे से डिस्टर्ब हो सकते हैं, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है, कोई शब्द ठीक नहीं बोलता, घर में भी होता है ऐसे, भाई बहन भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, और कई बार तो टीचर से भी होता है ना, कोई टीचर बहुत डांटते हैं और कोई थोड़ा कम डांटते हैं और कोई प्यार से चलते हैं। तो बच्चे क्या हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा डांटते हैं, उन डांट से हम क्या हो जाते हैं, वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल तक भी नहीं भूलते हैं। ऐसा होता है ना, किसी की डांट हम लोग 10 साल तक भी नहीं भूलते हैं, और कई तो कहते हैं मरते दम तक भूलेंगे नहीं, इन्होंने गलत व्यवहार किया था, इन्होंने मुझे सबके सामने बोला था, तो मैं जीवन भर इसको नहीं भूलने वाला। फिर नुकसान किसका होगा? वो तो डांट के चले गए, वो तो खुश है अपनी लाइफ में, और वो तो सोच भी नहीं रहे कुछ, जिन्होंने डांटा, और हमने क्या किया, यहाँ पर पकड़ के रखा, 10 साल 20 साल जब तक जिंदा रहे उसको पकड़ के रखा, और शरीर छोड़ दिया तब भी पकड़ के रखा। ये शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो अंदर में सोल है ना,
ये सोल चला रही है शरीर को, शायद आपको पता हो। ये तो विनाशी चीज है ना, जड़ है, कॉस्ट्यूम है, और सोल सब कुछ कर रही है, जिसको हम हिंदी में आत्मा कहते हैं। सोल, सोल माना आत्मा, सोल माना मिट्टी, शरीर मिट्टी है, आत्मा इसको चलाने वाली है, और वो आत्मा ही सोचती है, निर्णय करती है, और इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। रिकॉर्डिंग कहाँ है? जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? आत्मा पर। मैंने शरीर छोड़ा तो मेरे साथ जो डिस्टर्बेंस का संस्कार था ना, वो मैं साथ ले गई। अब मैं अगले क्वेश्चन में जाऊंगी, वो संस्कार फिर साथ जाएगा मेरे, और मैं वहां भी, उस शरीर में भी 9 महीने बाद मेरा जन्म होगा, तो वहां भी मैं कैसे रहूंगी? गांठ पड़ी हुई, देखो यहाँ पर कितनी गांठें पड़ी हुई हमारे नेगेटिविटी, नेगेटिव संस्कारों की, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जेलस, नफरत, इरिटेशन, है ना, फ्रस्ट्रेशन, और भी कई काफी सारी छोटी छोटी गांठें पड़ी हुई हैं। तो चाहे आप इस शरीर में रहिए, चाहे आप दूसरे शरीर में जाइए, गांठें वैसे की वैसे रहेगी अगर हमने उसको खोला नहीं, उसको ठीक नहीं किया। और कहते हैं कि संस्कारों से ही हमारा जन्म होता है। जन्म अच्छा हो, शरीर अच्छा मिले, बुद्धि अच्छी मिले, धन मिले, संबंध अच्छे मिले, परिवार अच्छा मिले, पढ़ाई ठीक हो, यश हो, समृद्धि हो, ये कैसे मिलता है? चाहते तो सभी हैं ना, 10वीं अच्छी हो। ये हमारे संस्कारों से होता है। जो हमने जीवन भर संस्कार और कर्म किए, वो यहाँ आत्मा पर रिकॉर्ड हो जाते हैं, और उसके अनुसार हमारा बर्थ होता है। आज जो हमारा बर्थ है, आज जो हम हैं, जो आज मुझे इस जीवन में मिला है, वो कब किया था? कई कहते हैं मैंने आज तो कुछ नहीं किया, आज तो मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गलत किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो किसी को दुख भी नहीं दिया, मैंने तो किसी का बुराई नहीं किया, हमेशा ही भला किया है, पर मुझे मिलता दुख है। ऐसा होता है सबके साथ, ज्यादातर होता है, कंप्लेन रहती है। तो वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। कौन कह रही है मैंने कुछ नहीं किया? हम इस शरीर को देखकर कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। इस शरीर ने ही नहीं किया, किसने किया था? इस शरीर ने नहीं किया। सही, राइट है। फिर ये रोग क्यों आ रहा है? रोग क्यों आ रहा है? बीमारियां क्यों आ रही है? तनाव क्यों हो रहा है ना? लैक ऑफ मनी क्यों? सफलता क्यों नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं? कई बार परिवार ठीक नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं है, क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, इस शरीर ने कुछ नहीं किया, किसने किया? फिर हम कहते हैं उनके कारण हो रहा है, उनके कारण हो रहा है, भगवान के कारण हो रहा है, ऐसे कहते हैं। तो शरीर ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने तो किया था। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा हूँ मैं। कब किया था? इस शरीर ने नहीं किया। फिर मैंने कब किया था? पिछले शरीर में किया था, और मुझे याद है नहीं, याद है नहीं है। हम केवल प्रेजेंट को देख रहे हैं, पास्ट को नहीं देख रहे। हम एक काल को देख रहे हैं, हम तीनों कालों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम इतने नॉलेजफुल नहीं हैं। लेकिन परमात्मा तो नॉलेजफुल है ना। तो वो ये कहता है बच्चे इस कॉस्ट्यूम में नहीं किया, इसलिए कॉस्ट्यूम में किया है। तो जो बीज बोते हैं उसका क्या निकलता है? फल निकलता है। चाहे वो इसी जन्म में फल मिले, अगले जन्म में फल मिले, उससे अगले जन्म में फल, ऐसे हमारे 84 जन्म होते हैं, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हर
कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए, सोच समझ के कर्म करो, इसलिए कहते हैं सोच समझ के कर्म करो। अगर मैंने कहीं गलत किया है ना, तो ऐसा नहीं वो उसी रूप में गलत आएगा, वो किसी और फॉर्म में गलत आएगा, किसी और फॉर्म में। तो फिर हम कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये क्यों हुआ? तो हम वहाँ पर फिर टेंशन ले लेते हैं, समझ नहीं आती वो बात। इसलिए समझना जरूर है कि जो भी कुछ हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, जो भी कुछ आ रहा है वो मेरा ही कहीं ना कहीं किया हुआ कर्म है। इसको हमें समझना है अच्छी तरह से, फिर अशांति नहीं होगी, दुख नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। और आज मैं जो कर्म करूंगी, आज मैं जो बीज बोऊंगी, वो मेरे को आगे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आज क्या करना चाहिए? मेरा जो संस्कार है नॉर्मल क्या है? आज से सोचना और बोलना ठीक करना है। हम गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं। कैसे? कई बार हम कहते हैं ना हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हम तो बहुत बिजी है। कॉमन वर्ड हो गया ना, किसी ने एक बार कहा होगा मैं बिजी हूँ, तो दूसरे ने कहा मेरे कोई फ्री हूँ क्या, मैं भी बिजी हूँ, मेरे पास भी बहुत काम है। सोचते हैं काम को बिजी कहते हैं। अच्छा, तीसरे ने कहा मेरे पास भी बहुत काम है, मैं भी बिजी हूँ। चौथे ने कहा मैं भी बिजी हूँ। ऐसे सबने क्या कहना शुरू कर दिया आजकल। अब छोटा बच्चा भी कहता है मैं भी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास भी फुर्सत नहीं, मेरे पास भी बहुत काम है, मैं क्या खाली हूँ? तो हम खाली होते ही नहीं। कहो ना अपने को ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। एक व्यक्ति था, एक लकड़ी की आरी होती है ना, वो आरी से लकड़ी चीर रहा था, लकड़हार। तो एक व्यक्ति वहां से सुबह गुजरा, तो उसने देखा कि लकड़ी चीर रहा है। फिर वो शाम को वहां से आया, तो तब भी लकड़ी चीर रहा था उस आरी से ना। कहते मैं सुबह गया तब भी तुम यहीं पर लगे हुए थे, मैं शाम को आया तब भी तुम उसी में लगे हुए हो, क्या बात है, इतना ही काम हुआ है? कहते नहीं, वो मेरी आरी की धार तेज नहीं है, आरी धीरे चल रही है। कहते तुम धार को तेज करवाओ। कहते समय नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। अब धार तेज हो जाएगी तो काम कितना जल्दी होगा ना जल्दी, कितनी लकड़ियां कट जाएंगी। हम भी यही कहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं अपने को ठीक करने का, हमारे पास टाइम ही नहीं है 2 मिनट अपने को शांत करने का, अपने को खुशी को लाने का टाइम ही नहीं है, हैप्पीनेस के लिए नहीं है, अपने को पावरफुल बनाने के लिए नहीं है, टाइम ही नहीं है, भाग रहे हैं। कई तो ये भी कहते हैं मेरे पास ना मरने की भी फुर्सत नहीं है। कहते हैं मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, जब मरना आएगा फिर क्या करेंगे? देखो हम क्या शब्द बोलते हैं, अपने पर हंसी आती है उसे। तो जब मरने के लिए फुर्सत नहीं तो इसकी जो फुर्सत है, क्यों आए हम लोग यहाँ पर? क्या भगवान ने हमें बीमारियां दी हैं? क्या भगवान ने हमें ये मानसिक रोग दिए हैं? क्या भगवान ने हमें गरीबी दी है? क्या भगवान ने हमारे रिश्ते खराब किए हैं? किसने किए हैं? आप बताओ किसने किए हैं? हमने खुद किए। अब ठीक किसको करना है? हमें खुद करना है। हाँ, भगवान से हम शक्ति लेते हैं परमात्मा से ना, वो सर्वशक्तिवान है, वो गुणों का सागर है, ओशन ऑफ वैल्यूज, ओशन ऑफ नॉलेज। मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं संतान हूँ। तो हम कहते हैं उसको याद करने का भी फुर्सत नहीं है। हम कहते हैं आधा घंटा मेडिटेशन करो, कहते फुर्सत ही नहीं है। जब मैं अपने को ठीक नहीं करूंगी, अपने को मैनेज नहीं करूंगी, तो मैं बाहर कैसे मैनेज करूंगा? बाहर भी फिर गड़बड़ हो रही है। देखो कितनी घटनाएं, कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम, कितने प्रकृति प्रकोप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव तरंगे प्रकृति में जा रहे हैं, एक एक चीज में जा रहे हैं, और वो लौट कर हमारे पास आ रहे हैं।
किसका नुकसान कर रहे हैं? हमारा कर रहे हैं, हमारा कर रहे हैं। अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो गुस्सा मेरी बॉडी का भी नुकसान करेगा। कितनी बीमारियां हो जाती हैं, कितनी बीमारियां क्रोध के कारण होती हैं, टेंशन के कारण होती हैं। होती नहीं होती? डॉक्टर भी कहते हैं, कहते हैं बेटा खुश रहा करो, खुश रहा करो, कहते हैं ना। तो बीमारी यहाँ इफेक्ट, फिर दूसरे हमारे रिश्ते पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी को गलत बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उसके लिए गलत बिहेव करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है। फिर कहते हैं भगवान ने रिश्ता बिगाड़ दिया, मैं तो ठीक था। हम ठीक नहीं थे। तो रिश्ता कभी भी बोल और व्यवहार से नहीं बनता। रिश्ता कहाँ से बनता है? आप कितना मीठा बोलो, कितना ही अच्छा व्यवहार करो, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दो, फिर भी रिश्ता टूट जाता है। क्यों? शादी होती है ना, दहेज में कितना सामान देते हैं। कई तो 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 करोड़ रुपया भी दे देते हैं। मेरी बच्ची खुश रही, फिर भी खुश नहीं रहते हैं, फिर भी खुश नहीं रहते हैं। क्यों? 3 महीने में डाइवोर्स हो जाता है। आजकल तो तुरंत डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ दिल से सोच ठीक नहीं है। रिश्ता हमेशा सोच से बनता है। सोच, जैसे कोई हमें ये कहता है कि हमारे घर भी कोई आया, तो हम उसको कहते हैं बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। अच्छा, हम उसको कहते हैं खाना खाओगे क्या? वो कहता है हाँ खा लूँगा। तो हम किचन में जाते हैं, अंदर फिर बोलते हैं अच्छा मैं तो एक बार ही पूछ लूँ, ऐसी तो बैठी गई, मैं तो एक बार ही ऐसे पूछा फॉर्मेलिटी के लिए, तो खाने ही लग गए। होता है वैसे। वो व्यक्ति अगर हमें पसंद नहीं है ना, हम उसके लिए ये थॉट क्रिएट करते हैं। तो जो बात बोलने लायक नहीं है वो सोचने लायक नहीं। मैं आपके सामने तो बोल कुछ रही हूँ, अंदर अंदर सोच कुछ रही हूँ। ये कब जाएंगे, कब ये उठे? किसी का फोन आ गया ना, अच्छा मुश्किल से बात कर लेंगे, वो हमारे से बात करना चाह रहा है, और ऊपर से तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, सुन लेंगे। ये कब फोन रखेगा? ये तो बोल कर देता है, ये तो ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, इसको तो कुछ काम ही नहीं है। और सोच कैसी है? बोल रहे हैं मीठा मीठा, अच्छा ठीक हो क्या, और कैसे हो आप अच्छे हो, आप आओ कभी। अंदर से सोच रहे थे तो ना ही आए तो अच्छा है। तो रिश्ता मजबूत बने कैसे? तो जो बात बोलने लायक नहीं हो, सोचने लायक नहीं, तो अपनी सोच को ठीक करना सबसे पहले ना। संकल्प से सृष्टि बनती है, मानते हैं इस बात को? संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर सृष्टि अभी खराब, एक है बाह्य सृष्टि, एक है इनर वर्ल्ड। ये इनर वर्ल्ड है, ये बाह्य वर्ल्ड है। बाह्य वर्ल्ड कलयुग आ गया। आप कहते हो ये बाह्य वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, बहुत कुछ है बाह्य वर्ल्ड में ना, घटनाएं हैं, दुख है, अशांति है, गरीबी है। उसके लिए हम क्या क्या करते रहते हैं, है ना? गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं, कोई भगवान को देता है, कोई किसी को देता रहता है। तो अब क्या है, ये बाह्य वर्ल्ड बना कैसे? ये कैसे बना? किसने बनाया? बताओ किसने बनाया? अगर आपने ये बता दिया ना, समझ लो आपको ये सब सेशन समझ में आ गया। ऐसे इधर उंगली करो, ऐसे नहीं, दुनिया खराब है, ये नहीं तो मैं तो ठीक हूँ, बाकी सारे खराब है। कई लोग ये भी घर में बैठे बैठे ऐसे ही बोलते रहते हैं, सारे खराब है, मैं तो ठीक हूँ। तो ये भी पॉजिटिव सोच नहीं है। क्या सारे ठीक हैं? हर सोल ईश्वर का बच्चा है। जब हम ऊपर से आए थे ना, ये सृष्टि हमारा परमानेंट घर नहीं है। तो यहाँ से निकल गए तो ये कमरा भी छोड़ जाता है। हमारा घर ऊपर है, परम धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्म, भगवान का घर।
और वहां से आए। ये सृष्टि एक स्टेज है, एक रंगमंच है। तो जब हम ऊपर से आए थे, अभी मैं आपको एक अच्छी बात बता रही हूँ, परमात्मा ने बताई कि ये सृष्टि बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। सुंदर का ये मतलब नहीं कि सुंदर सुंदर मकान थे, सुंदर सुंदर चीजें थी, वो तो था ही, सोने के मकान थे यहाँ पर, बाहर सोने की चिड़िया थी। यहाँ कैसे लोग रहते थे? डिवाइन सोल, डिवाइन सोल। डिवाइन मतलब जिनके अंदर वैल्यूज थी, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, खुशी, ईमानदारी, सत्यता, है ना, सरलता, मधुरता, करुणा, दया, क्षमा, ये सब वैल्यूज थी। तो जिनके अंदर वैल्यूज होती है उनको क्या कहते हैं? डिवाइन सोल कहते हैं। सोल तो सभी हैं, एक होती है डिवाइन सोल, दिव्य आत्मा, जिनकी हम पूजा करते हैं मंदिरों में, श्री कृष्ण जी है ना, ऐसे डिवाइन सोल। तो उस टाइम क्या था, जब आत्मा शुद्ध थी, प्योर थी, वैल्यूज थी, तो ये भारत सोने की चिड़िया था, कोई शरीर में बीमारी नहीं। आपने देखा ना श्री कृष्ण को डॉक्टर के पास जाते हुए? नहीं ना, लक्ष्मी नारायण डॉक्टर के पास नहीं जाते। ना तो धन की कमी थी, इतना धन था, इतना धन था, भारत सोने की चिड़िया था, कोई गरीबी नहीं थी, और कोई रिश्ते खराब नहीं थे किसी के, बहुत अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि वैल्यूज बढ़ी तो रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। और गुणों के कारण, बुराइयों के कारण रिश्ते खराब होते हैं। और मन भी हमारा बहुत अच्छा था, दिल को बड़ा करना है, थॉट को बड़ा करना है। और क्या सोचेंगे? जैसे शरीर में कोई बीमारी है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। कोई भी आपको बीमारी है, दवाई अपनी जगह काम करेगी, दवाई भी लेनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट भी करनी है, लेकिन साथ साथ अपनी हीलिंग भी करनी है। जैसे कुछ है आपको डायबिटीज, मेरी डायबिटीज नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, पेट, किडनी नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल कहना है। ऐसे नहीं कि डॉक्टर ने कह दिया ये दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अब हमने क्या सोच लिया, ये दवाई तो मेरे जीवन भर चलेगी, अब ये तो छूट ही नहीं सकती। देखो यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग कर लिया कि मेरे को डायबिटीज है, मेरे को किसी को कैंसर होता है, मेरे को कैंसर है, मेरा बीपी लो रहता है, मेरे को ये प्रॉब्लम, अब ये तो जीवन भर चलेगा, दवाई जीवन भर चलेगी। और इसी से हम शरीर भी छोड़ देते हैं और वो संकल्प हम साथ लेकर जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है। बताओ उन्होंने क्या किया? डायबिटीज क्यों हुआ उनको? कैंसर क्यों हुआ छोटे छोटे बच्चों को? उन्होंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। वह पिछले जन्म का थॉट आत्मा अपने साथ लेकर आई है, यहाँ रिकॉर्ड हो गया था। वो बॉडी भी वैसे डेवलप हुई है। ये एक साइंस है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो इसलिए क्या सोच रहे हैं, सत्युग में हमारे परफेक्ट शरीर होते थे ना, परफेक्ट शरीर होते थे डिवाइन सोल के। तो अभी फिर वही सोचना, मेरी बॉडी परफेक्ट है, मैं निरोग हूँ, मैं ये हूँ। थोड़ी बीमारी है ना, ये नहीं सोचना मैं बीमार हूँ, क्या करूँ, हाय हाय वाह वाह करूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक होते जाए। और क्या सोचेंगे, मेरे रिश्ते, किसके रिश्ते खराब हैं? मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ, सब मेरे सहयोगी हैं। आप सोचते जाइए, आपके रिश्ते आप देखिए ना ठीक हो जाएंगे। जिसके साथ ना भी हो ना, उसके साथ भी ठीक हो जाएंगे। आप ये मिरेकल है, करके देखना, प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन जा रहा है, बढ़नी जा रहा है। और थोड़ा सा रिश्ता खराब होता है ना, क्या करते हैं, ये तो है ही खराब, ये तो कभी हम बोलेंगे नहीं, हम तो बोल नहीं सकता कुछ, ऐसे नहीं, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो बात आई तो उसको हम बैठ के सॉल्व कर लेंगे और मन से सोचते जाइए, अच्छा है, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे साथी हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो।
तो देखना आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। और क्या सोचेंगे? सफलता, सफलता के लिए क्या सोचेंगे? आप अपनी पढ़ाई के लिए भी सोच सकते हैं कि मैं सुबह सुबह सोचना, रात को सोने के टाइम सोचना और सुबह उठते सोचना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मेरा पेपर बहुत अच्छा होता है, हो रहा है, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मेरी नौकरी बहुत अच्छी लगेगी, मैं जो भी करूँ उसमें सफलता मिलेगी, सफलता निश्चित है। ऐसे नहीं होगी या नहीं होगी, वही पड़ी है। हम लोग दो शब्द बोलते हैं ना, होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, भगवान कहता पत्ता गिर जाएगा, तो होगा या नहीं होगा। भगवान भी सोचता है मैं करूं या ना करूं। देखो दो शब्द है, तो सोचना नहीं, बोलना नहीं, जो चाहते हैं वही सोचना, वही बोलना। क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वो सोचना, वो बोलना। तो संकल्प से क्या हो जाएगा? अभी बोलिए, संकल्प से क्या हो जाएगा? सिद्धि हो जाएगी। आप भी सिद्धि कर सकते हैं, गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप भी पावरफुल आत्मा है, आप भी भगवान के बच्चे हैं, आप भी मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो ब्लेसिंग खुद को देनी है, रोज देनी है, रोज देनी है, दूसरों को भी देनी है, दुआएं देनी है, ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो सफलता मेरे लिए निश्चित है, मैं शांत आत्मा हूँ। तो खत्म हो जाएगी, रोज करिए, मैं शांत हूँ, मैं शांत, आई एम पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, लवफुल सोल। बोलते जाइए, सोचते जाइए, बोलते जाइए, सोचते। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? वैसे बन जाएंगे ना। अभी जो भी हम हैं ना, वो हमारी सोच की वजह से है और हमारे बोलने की वजह से हम लोग। तो अपने को हम ठीक कर सकते हैं, उस सेल्फ को इस तरह से हमें मैनेज करना है। प्रॉब्लम सबकी सेम ही होती है, लेकिन एटीट्यूड उसको डिफरेंस बना देता है। एक वीडियो छोटी सी आपको दिखाएंगे, उससे आप समझ जाएंगे। वीडियो है, फिर आपको थोड़ा सा मेडिटेशन का भी दिखाएंगे, 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर हम सेशन को करेंगे।
काम बैठा है कौन नहीं, अपने से बात करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। हाँ जी, इसको आप डेली भी कर सकते हैं, डेली करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हमारे YouTube पर भी ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन कब कॉस्ट, अभी हम चलते हैं 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अंदर की दुनिया में जाएंगे, इनर वर्ल्ड। अपने को संकल्प देंगे, थॉट देंगे, पॉजिटिव, पावरफुल। इन 2 आईब्रोज के बीच में देखेंगे, मैं I am the soul point of light, मैं point of light हूँ। देखते बचाए उसको विजुअलाइजेशन करें। आपके मस्तक में जहाँ तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, यहाँ मैं आत्मा में सोल विराजमान हूँ। बोलेंगे मन में और देखेंगे भी साथ साथ, फिर उसको फील करेंगे। मैं एक शांत आत्मा, मैं चमकता हुआ सितारा, इस शरीर के मालिक, ये शरीर एक कॉस्ट्यूम है, इसको पहनकर मैं इस दुनिया में रोल कर रही हूँ, अभिनय कर रही हूँ। मेरा स्वभाव, मेरी नेचर शांति है। मैं प्योर सोल, शुद्ध प्योर, मैं सदा खुश हूँ। हैप्पीनेस इज माय नेचर। मैं लवफुल सोल हूँ। प्रेम मेरा गुण है। हर आत्मा प्रेम स्वरूप है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, पावरफुल सोल। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ।
हूँ उस सर्वशक्तिवान के संताप को मैं बहुत बहुत सुखी हूँ। सुख मेरे पीछे है। मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत प्यारे हैं। मेरे मस्तक से एक सफेद लाइट निकलकर पूरे ब्रेन में फैल रही है। देखते जाए, फील करते जाए, चेहरे पर भी फैल रही है वो सफेद लाइट आत्मा की शांति और पवित्रता की लाइट। गले में भी फैल रही है, दोनों कंधों में फैल रही है, भुजाओं में भी फैल रही है, हृदय में फैल रही है, पेट के अंदर फैल रही है, टांगों में फैल रही है। आत्मा की सफेद लाइट शांति और प्योरिटी की लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा शरीर सुस्त होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मन और तन शांत रिलैक्स हो रहा है। मेरे आसपास का वातावरण शांति वाला बनता जा रहा है। मेरा हर कार्य बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है। सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। परमात्मा मेरे सदा साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। मेरे परिवार के चारों ओर भी एक सुरक्षा कवच बना रही है। इस शहर के चारों ओर परमात्मा की शक्तियां फैल रही हैं। हम उनके सुरक्षा कवच में हैं, सुरक्षित हैं, उनकी छत्र छाया में हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी इस सुरक्षा कवच में नहीं पहुंच सकती। किसी की बुरी नजर मुझे नहीं लग सकती। मेरे ऊपर परमात्मा की नजर है, उनके ब्लेसिंग है। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मेरा ऑरा पॉजिटिव है। मेरा ऑरा वाइट है। मैं सदा शुभ सोच रही हूँ अपने लिए और दूसरों के लिए। मेरे साथ जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होगा। सारा दिन यही सोचे, जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। हर बात में कल्याण है। जो भी कुछ हो रहा है उसमें कल्याण समाया हो।
आज मुझे व्रत कर्म करना है, अच्छे कर्मों का बीज बोना है, अच्छे संस्कार बनाने हैं। मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है। मैं भरपूर हूँ, मैं भरपूर हूँ। परमात्मा से गुण लेकर, शक्तियाँ लेकर मुझे सबको बांटना है, देना है, क्योंकि मैं दाता की संतान हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ। देते जाएंगे, मिलता जाएंगे। प्यार देना है, रिस्पेक्ट देनी है, खुशी बांटनी है, केयर करनी है, चिंता नहीं करनी है, संग शांति देनी है, सुख देना है, शब्दों से भी सुख देना है, व्यवहार से भी सुख देना है, और मन से भी सबके लिए सुख देने वाले थॉट करने हैं। मेरा भी भला हो, सबका भला हो, हम भी सुखी रहें, सब सुखी रहें, हम भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। सबको आगे बढ़ाना है तो खुद आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरों से जेलस नहीं होना, उनको आगे बढ़ता देखकर खुश होना है। अगर मैं खुश होती हूँ तो मैं भी जीवन में आगे बढ़ती जाती हूँ। अप्रिशिएट करना, कंपैरिजन नहीं करना, कंपटीशन नहीं करना। हर एक अपना अपना भाग्य है, हर एक अपना अपना कर्म कर रहे हैं। मुझे अपनी डेस्टिनी को अच्छा बनाना है, दूसरों के भाग्य से जेलस नहीं होना। ओम शांति 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 शांति। इसमें जो दिखा रहे थे, इसमें जो दिखा रहे थे, ये समझ लो 2 व्यक्ति हैं।